Hello students, today we are going to study second chapter of chemistry. Is matter around us pure? Now what is matter? You already learnt in chapter 1. Matter means anything around us which occupies space, have mass, density or which we can experience. And the physical classification of matter we already learned in part 1, that is in chapter 1. हमने पहले के दो वीडियोस में जो चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, मैटर क्या होता है और मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल classification of matter. Now on the basis of chemical composition, matter is classified into two main types. First, pure substances and second, impure substances. Impure substances are also known as mixtures. Means on the basis of chemical composition, there are two types of matter, pure substances and impure substances, which are also known as mixture. The pure substances are further divided into two types, elements and compounds. And mixtures or impure substances are divided into two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Now what are pure substances? Pure substances are those substances which consist of a single type of substances. Pure substances are those substances which are made up of only one kind of particles. Pure substances वो substance होते हैं जो one kind of particle से form होते हैं. All the elements and compounds are pure substances because elements are made up of same kind of particles which are known as atoms. जितने भी elements होते हैं वो small particles से बने होते हैं जिनको atoms कहा जाता है. जैसे आयरन है, आयरन में आयरन एटम्स, कॉपर में कॉपर एटम्स, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम्स. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम सेम काइंड ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स जो होते हैं वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और उनके पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि एक कंपाउंड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है. मीन्स एलिमेंट्स में सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं और कंपाउंड्स में सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. मिक्सचर जो कि सेकेंड टाइप ऑफ मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ chemical composition, which are also known as impure substances. It is a substance which consists of two or more pure substances. Means if a substance is made up of more than one kind of particles, then such type of substances are called impure substances or mixture. For example, seawater. Seawater consists of seawater में mainly क्या होता है, water होता है और उसमें बहुत सारे salts dissolved होते हैं. Means it is a mixture of two or more pure substances. Air is a mixture of hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors, etc. Similarly, sugar in water. Sugar in water is a mixture of sugar and water. Sugar is one substance, sugar is a compound and water is another compound. Salt in water is a mixture because it consists of salt and water. Means there is particles of salt and particles of water. तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया. Pure substances means which are made up of only one kind of particles and mixtures are those substances which are made up of more than one kind of particles. यहाँ पर स्लाइड पे आपको डिफरेंट फिगर्स के थ्रू दिख रहा है कि प्योर सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, सेकेंड भी प्योर सब्सटेंस है जिसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल है और मिक्सचर में टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मिक्स है. इट मे बी मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. Now what is difference between pure substances and impure substances? Pure substances consist of single type of substance. Means pure substances consist of one kind of particle and mixture consists of two or more pure substances. Means mixture or impure substances consist of more than one kind of particles. Pure substances cannot be separated into other substances by physical methods. Pure substances को other substances में physical methods से separate नहीं कर सकते हैं. Physical methods means by sieving, by hand picking, by filtration, by boiling, by melting.
इन प्रोसेसेस से प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स जो होते हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर। यदि हम सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करेंगे तो उसका वाटर इवापोरेट होकर सेपरेट हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड सॉल्ट, तो हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एंड प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंसेस की अपनी ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो होते हैं अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। Now types of pure substances. There are two types of pure substances. First one is element and second is compound. Now what is an element? Element is a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. एलिमेंट जो होता है मैटर का बेसिक फॉर्म होता है जिसको फिर से ब्रेक नहीं किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। मीन्स सिंस एन एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एन एलिमेंट कैन नॉट बी सिंथेसाइज। क्योंकि एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता है इसलिए एलिमेंट को बनाया भी नहीं जा सकता है। देन वन एलिमेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल विच आर नोन एज एटम्स। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होते हैं जिनको एटम्स कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। नाउ व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव लस्टर। लस्टर मीन्स उनमें चमक होती है। दे आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मीन्स जब उनको हथौड़े से मारा जाता है तो उनकी शीट्स बन जाती है। दे आर डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मीन्स उनकी वायर्स बनती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन उनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इसलिए बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम की वायर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज़ होती हैं। दैन दे आर सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट। ये सोनोरस होते हैं मीन्स जब इनको हिट किया जाता है, मारा जाता है तो उससे आवाज़ निकलती है। आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। यहाँ पर आपको स्लाइड पे दिख रहा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर है एंड राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम मेटल की स्लाइड है। देन मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो होता है मरकरी। Now second types of elements are non-metals. Non-metals are those elements which do not have luster. Non-metals वो elements होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। They are not malleable or ductile, means ना उनकी sheets बनती हैं ना उनकी wires बनती है। They are poor conductor of heat and electricity, means वो heat और electricity को conduct नहीं करते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक फॉर्म होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट सोनोरस मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, फॉस्फोरस। आपको यहाँ नीचे स्लाइड पे सल्फ़र, ब्रोमीन एंड कार्बन दिख रहा है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है। सल्फ़र एंड कार्बन नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड है। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल हैं जो गैसेस होते हैं। कार्बन आपको दिख रहा है सॉलिड है। सल्फ़र भी सॉलिड है। सिमिलरली आयोडीन एक नॉन मेटल है, वो भी सॉलिड है। मीन्स नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। तीसरे टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटोलाइट्स होते हैं। मेटोलाइट्स आर एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मेटोलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटोलाइट्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। इस स्लाइड पे नीचे पे आपको बोरॉन शो किया गया है। तो बोरॉन जस्ट लाइक सॉलिड दिख रहा है आपको एंड थोड़ा सा उसमें लश्चर भी दिख रहा है, मीन्स मेटलिक लुक दे रहा है, लेकिन ये कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ प्योर substances is element, and there are three kind of elements: metals, non-metal and metallites.
Now second type of pure substance is compound. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से फिक्स्ड रेशो में केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। मीन्स एक कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो जाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड एट्सेट्रा। Now water is formed by two different elements, hydrogen and oxygen. When two atoms of hydrogen combines with one atom of oxygen, water is formed. वाटर फॉर्म होता है जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होता है। कंपाउंड्स में ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। मीन्स वन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड में सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर में अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन since the compound is formed by same kind of molecules, compounds are also pure substances. इसलिए compounds भी pure substances होते हैं। यदि हमारे पास water in the form of, यदि कोई पानी है जिसमें कि impurities present है, लेकिन हम उसको substance के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बोलेंगे तो हम उसको प्योर सब्सटेंस, वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। उसमें इम्प्योरिटीज़ है तो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम वाटर को प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं समझ में आया आप लोगों को? कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। Now second type of substances, impure substances or mixtures. Those substances which contains more than one kind of particles are called impure substances or mixture. इनको मिक्सचर इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। यदि हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर दें, जिसमें दो एलिमेंट को मिक्स कर दें, तो एक एलिमेंट में वन काइंड ऑफ एटम है, दूसरे एलिमेंट में वन काइंड ऑफ एटम है, लेकिन दोनों को मिक्स किया तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स हो जाएंगे, तो वो मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture? When all the component of a mixture uniformly mixed with one another, the mixture form is called homogeneous mixture. जब किसी मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म यूनिफॉर्म एंड गिव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ब्लू कलर्ड सोल्यूशन है। एक्चुअली दिस ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। कॉपर सल्फेट एक सब्सटेंस है और वाटर अनदर सब्सटेंस है, ये दोनों को मिक्स किया है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से वो विजिबल नहीं होते, मीन्स दोनों आपको सेपरेटली नहीं दिखेगा, मीन्स दे हैव नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। होमोजीनियस मिक्सचर में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होता है, मीन्स वो जिससे फॉर्म होता है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। देन सच टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर स्टेबल बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, मीन्स यदि आप उसको कुछ समय के लिए रख देंगे तो उसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। एंड द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। जो यदि इस पर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट उस सोल्यूशन पे विजिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। ये तो आप घर पे एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि यदि आप शुगर को वाटर में डालेंगे तो शुगर वाटर में होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है और आपको कहीं भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड वाटर दिखाई नहीं देता है। सिमिलरली नमक को आप पानी में डालते हैं तब भी होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। दैन मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये तो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब उसे वाटर में डाला जाता है तो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन बनता है, लेकिन आपको कॉपर सल्फेट इन वाटर सेपरेटली नहीं दिखेंगे, बस आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखेगा। Now second type of mixture are heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture are formed when the particle of one substance do not uniformly mix with other substance. जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं तो जो मिक्सचर फॉर्म होते हैं उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड इन सच टाइप ऑफ मिक्सचर देयर इज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर आपको
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखेगी। यहाँ पर एक बीकर है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, जिसमें 3 सब्सटेंस मिक्स हैं, सैंड, वाटर एंड ऑयल। जब इन तीनों को मिक्स किया तो ये तीनों ने सेपरेट लेयर फॉर्म कर ली है, सैंड एट द बॉटम, देन वाटर एट द मिडिल एंड ऑयल एट द टॉप। मीन्स देयर इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज 3 कंपोनेंट। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर अनस्टेबल। जब आप इसको स्टर करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड तो वो आपको मिक्स होते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको ऐसे ही रख देंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली हो जाएंगे। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इन पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ऑयल की लेयर है, क्योंकि फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल की लेयर जो है लाइटर होने के कारण ऊपर है, तो हम इसको डिकंटेशन से अलग कर सकते हैं। उसके बाद वाटर एंड सैंड है, तो हम फिल्टर करेंगे तो वाटर नीचे आ जाएगा और सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। मीन्स फिजिकल मेथड से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर में पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे के लेक्चर में जब हम ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन पढ़ेंगे उस पार्ट में और क्लियर करेंगे। अभी आप इस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। Example of heterogeneous mixture: mixture of salt and sand, mixture of sulfur and iron fillings, mixture of oil and water, mixture of sand and water भी आप देखेंगे, रेत को खाली पानी में डाल देंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। तो what is homogeneous and heterogeneous mixture? Clear to all of you? Now the last topic of this lecture is difference between mixture and compounds. Now mixtures are impure substances because mixture composed of 2 or more kind of particles. When 2 or more elements or compound mix together, a mixture is formed. आप दो एलिमेंट को मिक्स किया तो एक मिक्सचर बना। सिमिलरली एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिक्स किया तो भी मिक्सचर बना। 2 कंपाउंड को मिक्स किया तो भी मिक्सचर बना। जब क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हो रही है तो मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए। A compound is composed of 2 or more elements chemically combined together in fixed proportion. कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशो। मिक्सचर में कंपोजिशन किसी भी रेशो पे होता है। जैसे हमने होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, सपोज सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर में हमने 1 स्पून सॉल्ट को वाटर में डाला 1 ग्लास वाटर में, तो मिक्सचर बना। 2 स्पून डाला तो भी मिक्सचर बना। 3 स्पून ऐड किया तो भी मिक्सचर बना। मीन्स कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स करके मिक्सचर को फॉर्म कर सकते हैं। बट कंपाउंड में कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज़ ऑलवेज इन अ फिक्स रेशो। मीन्स कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशो हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर फॉर्म होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम फिक्स्ड होता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन होता है। मीन्स कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मीन्स उनका फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स। मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की सब प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। बट कंपाउंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द कंपोनेंट्स। कंपाउंड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी वो जिससे फॉर्म होता है उनसे एंटायरली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा आग जब लगती है तो उसको सपोर्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होती है आग उतनी तेज़ी से जलती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, हवा तेज़ होगी तो ऑक्सीजन के कारण तेज़ी से जलता है। सिमिलरली हाइड्रोजन ऑल्सो सपोर्ट फायर। हाँ, ऑक्सीजन भी जो होता है वो फायर को सपोर्ट करता है। बट वाटर इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। लेकिन पानी का क्या यूज़ होता है? आग को बुझाने में। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो जिससे फॉर्म होता है उससे एंटायरली डिफरेंट होती है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मैथड से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन यदि आप वाटर को फिल्टर करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होगा। यदि आप बॉईल करेंगे तो वाटर अपना फिजिकल स्टेट चेंज करके लिक्विड से वेपर फेज में आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होगा। मीन्स फिजिकल मैथड से हम कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से हम कंपाउंड के
कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. दैट्स ऑल. द फर्स्ट part of the chapter 2, is matter around us pure, is completed. I hope all the points are understood, all the point you understood well. Now we will discuss the rest of the topics in the next lecture.